Good morning, students. So today we'll discuss this topic: can matter change its state? Yes, matter can change its state. We had three types of states of matter. ठीक है, in the last we studied that was solid state. There we had studied about liquid state, then gaseous state. Now these states they are interconvertible. जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है. लिक्विड कैन चेंज टू गैशियस फॉर्म. गैशियस कैन इन टर्न दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा और लिक्विड फॉर्म दोबारा से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सी नाउ वी हैव टू स्टडी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. तो वो कहता है कि वी ऑल नो फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 स्टेट्स में अकर करता है वो. सॉलिड में in the form of ice, liquid form में as the familiar water and gaseous form में as a water vapor. So वो कहते हैं what happens inside the matter during this change of state. जब ये state change हो रही है, अगर आप कहते हो कि solid is changing to liquid state, ठीक है, तो वो कहता है क्या हो रहा है फिर उस टाइम पे मैटर पे. What happens to the particles of matter during the change of state. और इनके अंदर जो हमने पार्टिकल्स पढ़े थे कि particles they have negligible intermolecular forces, they have larger intermolecular forces in comparison to solid. उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उसको चेंज कर रहे हो और इट इज़ मतलब वो अपने आप ही चेंज हो रहा है. ठीक है. सो हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस. नाउ फॉर दिस वी हैव टू स्टडी दिस एक्टिविटी 1.12 for activity 1.12. So in this activity what you have to study, एक तो हमें क्या लेनी है 150 grams of ice बीकर में लेनी है. Then we have to suspend thermometer so that its bulb is in contact with the ice. So sometimes in your exam you can get a question, what precautions should be taken in this activity. ठीक है. So what precautions should be taken during the change or during the study of change of ice to water, that the bulb of the thermometer should be in contact with the ice. ये इसकी एक प्रिकॉशन है. मतलब थर्मोमीटर का जो बल्ब है ये बल्ब this should not touch the base but it should remain there in between the ice. See, now you can see clearly. ठीक है. Now next, what is the next precaution that you have to take in this activity? You have to move this stirrer continuously. इसको हमने घुमाते रहना है continuously so that the heat which we are supplying through the burner वो क्या कर जाए, पूरी की पूरी तरह uniformly spread हो जाए into the contents of the beaker. Uniformly means वो ऐसा ना हो कि beaker आपका सिर्फ यहाँ से heat up हो रहा है, यहाँ पे heat ना reach हो, यहाँ पे heat ना पहुँच पाए. So that the contents of the beaker will get the heat equally or uniformly. ठीक है. So अब आपको now you have to note down the temperatures. क्या कब आपने टेम्परेचर देखना है. Start heating the beaker on low flame. हमने उसको हीट करना है. टेम्परेचर को आपने नोट करना है when the ice starts melting. जिस टाइम अच्छा अब जब आपकी आइस फॉर्म में था at that time your ice was showing 0 degree Celsius temperature. अब जब वो स्टार्ट हुई मेल्ट होना स्टार्ट होगी, even then your thermometer was showing the temperature 0 degree Celsius. Note the temperature when all the ice has converted into water. अब हमने तीसरी बारी टेम्परेचर नोट करना है जब आपकी पूरी की पूरी आइस जो है वो कन्वर्ट हो गई है इनटू वाटर. इवन एट दैट टाइम योर टेम्परेचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस. तो तीनों बारी हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर था दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट कि व्हाई दिस टेम्परेचर रिमेन्स सेम व्हेन वी आर सप्लाइंग हीट. तब भी वो 0 डिग्री सेल्सियस कैसे रह रहा है. ठीक है. आई एक्सप्लेन यू बट अभी हम ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. वो कहते हैं रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. सो व्हेन योर सॉलिड state changes to liquid state, this is known as melting. इसको melting बोलते हैं और this is also known as fusion. इसको fusion भी बोला जाता है.
Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. तो वो कहते हैं अब आपने क्या करना है, अब आपकी आइस पूरी तरह मेल्ट होगी, आपने 0 डिग्री टेम्परेचर नोट कर लिया, ठीक है. अगेन वो कहते हैं स्टार्ट हीटिंग द बीकर एंड कीप ऑन स्टेरिंग इट. स्टेरिंग करना, उसको मूव करते रहना स्टेरर के साथ, ठीक है. टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब तक आपका वाटर जो है बॉयल करना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है. आपने तब जब वो बॉयल करना शुरू किया आपका वाटर जो व्हेन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, एट दैट टाइम व्हेन यू विल नोट द टेम्परेचर इट विल शो यू 100 डिग्री सेल्सियस. फाइन. देन वो कहते हैं कीप अ केयरफुल आई ऑन थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड. जब तक पूरा का पूरा जो वाटर है वो वेपराइज नहीं हो जाता, ठीक. तो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, इवन देन योर वाटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. फाइन. नाउ नेक्स्ट, सो रिकॉर्ड करनी. अब आप ये देखो ये टेम्परेचर्स भी सेम थे, इवन 0 डिग्री वॉज सेम, ठीक. अब वो क्यों सेम था, हमने ये पढ़ना है कि क्यों ऐसा हो रहा था, ठीक है. देखो, now we know that suppose we have a solid substance, ठीक है. इसके जो particles हैं they are very much closer to one another, they have negligible intermolecular forces. उनकी जो intermolecular forces है they are negligible, ठीक. Now when you will supply heat to them, तो these will gain kinetic energy. ये मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देंगे, दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर इन द कंटेनर. वो अलग हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, दे विल चेंज देयर पोजीशंस, ठीक है. अब इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसको किसने ब्रेक किया है, बेसिकली इसको ब्रेक किया है दैट हीट हैज़ ब्रोकन दैट हीट विच वी आर प्रोवाइडिंग. जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट ने ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया. लाइक व्हेन यू विल टेक एन एग्जांपल, सपोज 2 cars आर मूविंग, A एंड B. दिस इज A car एंड दिस इज B car. नाउ B car वांट्स टू ओवरटेक A car. तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा इफ इट वांट्स टू ओवरटेक कार A, ठीक है. तो देन व्हाट हैपन्स हियर, इफ दिस हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी इस कंटेनर के बीच में जा रही है, उसको अगर स्टेट को चेंज करना है तो पहले उसको ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ख़त्म करना पड़ेगा. इट हैज़ टू ओवरकम. इसको लिखते कैसे आंसर में, द हीट एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग हैज़ टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ओवरकम द फोर्सेस of attraction between the particles, ठीक है. Now that heat which is overcoming the forces of attraction, which is overcoming the forces of attraction, that will not be shown on the thermometer. वो जो थर्मामीटर के ऊपर हीट शो हो रही है, वो जो हीट है, आप ये कह सकते हो कि जो हीट काम कर रही है अंदर. लेट्स टेक एग्जांपल, व्हेन योर आइस वाज टेकन, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी. जब वो स्टार्ट हुई मेल्ट होना तब भी वो 0 डिग्री पे थी. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि जब वो बिल्कुल हार्ड थी, सॉलिड फॉर्म में थी, तब भी 0 डिग्री थी. मेल्ट होना शुरू हुई तब भी 0. व्हेन इट स्टार्टेड मेल्टिंग, और यू कैन से व्हेन इट कम्प्लीटली मेल्ट्स, जब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली मेल्ट कर गई थी, at that time thermometer was showing 0 degrees Celsius, but the temperature of the container, the contents of the beaker, it doesn't have 0 degree temperature, ठीक है. जिस टाइम पे वो पूरी मेल्ट कर गई, आइस जो थी आपकी पूरी मेल्ट कर गई और वो वाटर में चेंज हो गया, इस टाइम पे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा है. दैट इज़ मोर देन 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. But thermometer will show you 0 degree Celsius temperature because the heat overcomes the forces of attraction.
जो हीट हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है, जो हमें थर्मामीटर पे नहीं नज़र आ रही, इट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज़ बीइंग हिडन समवेयर. वो कंटेंट्स ऑफ द बीकर के बीच में समवेयर हिडन है, कहीं छुपी हुई है, जो हमें थर्मामीटर पे नज़र नहीं आ रही. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हिडन हीट. इसको क्या बोलते हैं? हिडन हीट. थर्मामीटर पे हमें ज़ीरो ही दिख रहा है, बट टेम्परेचर उसका 0 डिग्री से एक्चुअल में ज़्यादा है, बिकॉज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट. ठीक है. हिडन वर्ड इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट. क्लियर? सो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट, और you will say it is known as hidden heat. ठीक. Now when your solid changes to liquid state, ठीक है, जब आपका solid जो है वो when your solid changes to liquid form, तो हम कहते हैं कि melting is taking place, or you will say fusion is taking place. तो दैट हिडन हीट जो थी, उसको हम यहाँ पे इस केस में क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक. और व्हेन योर लिक्विड चेंजेस टू गैस, वो गैस में चेंज हो रही है, तो एट दैट टाइम विल से वहाँ पे क्या हो रही है? बॉइलिंग हो रही है. और व्हाट इज द अदर नेम फॉर बॉइलिंग? इज वेपराइजेशन. वेपर्स में चेंज हो रहा है क्योंकि वो, तो उस केस में हीट, लेटेंट हीट का नाम क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्लियर? सो नाउ द सेम थिंग विल स्टडी फ्रॉम योर बुक, कि यहाँ पे ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं. ठीक है, तो आपको और भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. सी, देखो यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज. ये मैं अभी बताया आपको कि जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी. ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जैसे जैसे आप उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे विद ग्रेटर स्पीड एंड फाइनली दे विल गेट एनर्जी. ठीक है, एनर्जी लेके देन दे विल लीव देयर स्पेस. सो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो एनर्जी हम हीट के साथ उनको सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रही है? देखो लिखा हुआ है, ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, उनको ओवरकम किया जा रहा है. द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग more freely. So a stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. So the temperature at which solid melts, जिस टाइम पे वो पूरी तरह मेल्ट कर जाता है to become a liquid at atmospheric pressure, it is called melting point. ठीक है. So the melting point of the solid is an indication. अब बेटा जितना ज़्यादा उसके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स, किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स टेक एग्जांपल, वी कैन टेक एनी अदर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है. इट मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ गिविंग यू एन आइडिया कि कोई भी सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं. फाइन. नेक्स्ट, नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 Kelvin. ठीक है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट इज Kelvin हेयर. सी, वी हैव टू स्केल्स टू मेजर. इफ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर, वी हैव टू स्केल्स. ठीक है. थर्मामीटर पे 2 स्केल्स दिए गए होते हैं. जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड सेकेंड वी हैव केल्विन स्केल. ठीक है. दैट इज द SI यूनिट फॉर योर टेम्परेचर. केल्विन स्केल पे 0 डिग्री नहीं है, टेम्परेचर इज 273 Kelvin. So basically it is 273.16 Kelvin, but in a simple way we can say
कि 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो 0 डिग्री है यहाँ पे वो 273 केल्विन है। ठीक है, आगे देखो हम, चलो अब वो कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन, इट मीन्स दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. So the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ अभी. So when solid melts, its temperature remains same. अब वो कहता है वो टेम्परेचर सेम रह रहा है, क्यों रह रहा है वो देखो. Now in this paragraph he will explain you about hidden heat और latent heat. देखो, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. टिल ऑल द आइस मेल्ट. कहता है जब तक वो पूरी की पूरी मेल्ट नहीं होगी तब तक आपको 0 डिग्री ही नज़र आ रहा था. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर. अब जब वो मेल्ट होना शुरू हुई और जब तक मेल्ट होती मतलब कम्प्लीटली नहीं हुई हम उसको हीट कर रहे थे, बट स्टिल इट वॉज शोइंग 0 डिग्री, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. सो वो कहता है क्या हो रहा है ये हीट को, ये देखो लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस इन योर बुक्स ऑल्सो. दिस हीट gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. मतलब वो सामने नहीं आ रही है, आपको थर्मामीटर में नज़र नहीं आएगी. सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट, उसको क्या माना जाता है, दैट इट गेट्स हिडन, कि वो कहीं ना कहीं छुप गई है इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, बीकर के कंटेंट्स में, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट. सो लेटेंट वर्ड मीन्स हिडन. सो इन द नेक्स्ट लाइन दे हैव गिवन यू द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. So how you people will define the definition? Now I told you latent, when melting takes place, latent heat को बोला जाता है latent heat of fusion. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid, मतलब 1 kg solid को हम जब change कर देते हैं, convert करते हैं into liquid at atmospheric pressure at its melting point, that is known as latent heat of fusion. उसको क्या बोलते हैं, latent heat of fusion. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट, इसका मतलब वो कहते हैं 0 डिग्री, अगर वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है अगर हमारे पास, और लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, दैट मीन्स इट डजेंट हैव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर बेसिकली 0 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, एंड दैट विल नॉट बी शोन ऑन द थर्मामीटर, दैट इज़ हिडन समवेयर. ठीक, आगे देखो, अब आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, मेल्टिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया. Now you keep on heating the same contents of the beaker. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. अब आप और उसको प्रोवाइड कर रहे हो एनर्जी. अब वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दे आर गेनिंग एनर्जी. नाउ दे विल मूव फ्रीली. ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, और वो क्या करेंगे, एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. चले जाएंगे वो वहाँ से वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं. ठीक है, दे विल चेंज इनटू वाटर वेपर्स और गैशियस फॉर्म. सो एट दिस टेम्परेचर आपका लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो रहा है. सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड इन केल्विन स्केल इट इज़ 373 केल्विन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, वो इट्स गिवन हेयर. सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डू इट इन द सेम वे. देखो यहाँ पे दे मस्ट हैव गिवन हेयर. ओके, आई डू इट फॉर यू. देखो आपने क्या करना है वहाँ पे, वट यू विल राइट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर. यहाँ पे हमने लीटर्स कर देना है. ठीक है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट
इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक. सो क्या इन्फर करता है यहाँ पे, कहता है सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो अभी हमने ये इफेक्ट पढ़ा कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But अब सिर्फ हीट की बात नहीं है, इवन प्रेशर इज प्लेइंग सम रोल. अब हम प्रेशर का रोल भी पढ़ेंगे इसके बाद. ठीक है. बट देयर आर सम but there are some that change directly from solid state to gaseous state. Okay, this is another topic. अभी pressure का नहीं हमें पढ़ना. Now, mostly what happens, हर भी जितने भी आपका मैटर है, whenever you want to change its state, तो it always happens कि solid will change to liquid state and then liquid will change to gaseous form, gaseous और gas. ठीक है, you can say gas. ये ऐसे change होता है. ठीक है. और the gas will first change to liquid, liquid will then change to solid. ठीक है. but there is a process जिसमें liquid phase जो है वो बिल्कुल remove out हो जाता है, उसको नहीं, वो बीच में काउंट होता ही नहीं है, आता ही नहीं है. when your solid sometimes in some substances your solid will directly change to gas or gas will directly change to solid. Liquid phase doesn't appear in between in this process. So that process has a special name because this process takes place in few substances. So this process is known as sublimation. So what is the definition of sublimation? When solid changes to gas. When solid directly changes to gas, at that time we'll say that it is your sublimation. ठीक. So for this we have to study an activity again, that is activity 1.13. तो it's there in your book. देखो ये activity 1.13 है. इसमें आपने क्या लेना है, कैम्फर लेना है. ठीक है. और एक हमने अमोनियम क्लोराइड लेना है. ठीक है. नाउ इन दिस एक्टिविटी वी आर टेकिंग टू सब्सटेंसेज. वन इज सब्लिमेबल, जो सब्लिमेशन अंडरगो करता है, एंड अनदर वन विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस. तो इनमें से अमोनियम क्लोराइड जो है दैट इज सब्लिमेबल, मतलब वो गैशियस फॉर्म में डायरेक्टली चेंज हो जाता है. लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम योर होम. व्हेन योर मदर शी कीप्स नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं. नेफ्थलीन बॉल्स आर केप्ट, और नेफ्थॉल जो बॉल्स आती हैं छोटे छोटे, वो वाइट कलर की बॉल्स हैं आपके घर पे, वो रखी जाती हैं इन योर वार्म क्लोथ्स, है ना. व्हेन वी कीप देम, और जब हम उनको संभालते हैं तो हम उनमें नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं. सो व्हेन यू विल ओपन देम इन द नेक्स्ट विंटर्स, सो व्हाट इज देयर, यू वोंट सी दोज बॉल्स. आपको उनका साइज भी रिड्यूस नजर आएगा. Why so? Because naphthalene balls, they are in the solid form and they will directly change to gaseous form. अब वो जो fumes बन गए, उसके जो vapors बन गए, they will spread into the clothes. वो कपड़ों में spread कर जाते हैं. So because of those gaseous particles or vapors, you can say कि वहाँ पे कोई भी pests नहीं आते, मतलब कपड़े खराब नहीं होते. Similarly, your ammonium chloride, it will also directly change to gaseous form. So वो कहता है take some camphor और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट, उसको क्रश करो और उसको चाइना डिश. दिस इज योर चाइना डिश. लाइक योर चाइना डिश लुक्स लाइक दिस समवॉट. ठीक है. ठीक है. चाइना. अब वो कहता है पुट एन इन्वर्टेड फनल. दिस इज अ फनल. ये आपको जो ट्राइंगुलर नजर आ रही है, दिस इज अ फनल. तो कहता है पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. चाइना डिश के ऊपर रख दो उसको, कॉटन प्लग के साथ बंद कर दो. ठीक है. नाउ व्हेन यू विल हीट इट, तो होगा क्या, योर अमोनियम क्लोराइड, इट विल नॉट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, वो सीधे ही गैस में चेंज हो गया. और यहाँ पे साइड्स के ऊपर आगे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे उसके वेपर्स आपको नजर आएंगे. इट इज चेंजिंग टू वेपर फॉर्म. ठीक है. सो दिस इज सब्लिमेशन.
So what is the definition of sublimation? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, or vice